Hello, students. Today we are going to learn the new chapter 6 of PST, that is staffing. In the previous chapter, we have learned about the organizing, how we have assembled the resources, how we have fixing the responsibilities and authority of the different personals, so we will able to achieve our organizational goal. But before but before the work is put into action, it is not possible without the human resource. So in this chapter we are going to learn about the human resource. So first we go through what is staffing. So staffing consists of manpower, planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of managerial person. तो स्टाफिंग क्या है, जिसमें हम अपनी जो मैन पावर है, कितने लोग किस वर्क के लिए रिक्वायर्ड हैं, उन्हें हम कैसे रिक्रूट करेंगे, उसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, क्या कंपनसेशन के रूप में हम देंगे, कैसे प्रमोशन उनका होगा, ये जो मैनेजरियल पर्सन्स हैं उनके बारे में जो डिसीज़न यहाँ लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग. और वी कैन से स्टाफिंग इन्वॉल्व्स finding the right person for the right job, having the right qualification and doing the right job at the right time. So it is a process in which we are going to select the right person for the right job. So once the organizational goals are set, the plans are prepared, an organization is appropriately structured to pave the path of achievement of set goals. जैसे हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने गोल सेटअप करती हैं, उनसे रिलेटेड प्लान्स बनाए जाते हैं. एंड इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन वी हैव ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज टू अचीव द सेट ऑब्जेक्ट और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. The next step is to provide appropriate personnel to fill in the various position created by the organizational structure. हमने organizational structure में different job positions create किए थे, अलग अलग job बनाए थे, अलग अलग levels create किए थे. अब उन levels के लिए जो required number of persons की ज़रूरत है उसे हम fill up करेंगे. The process of putting people to jobs is termed as staffing. और जब लोगों को उस जगह पर व्यवस्थित किया जाता है, वो जॉब असाइन की जाती है, तो वो कहलाता है स्टाफिंग. स्टाफिंग द मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व अपॉइंटिंग अप्रोप्रिएट पर्सनल, developing them to meet organizational needs and ensuring that they are satisfied and happy workforce. So with the help of this staffing function जो है हम जो सही व्यक्ति है उसे सही जॉब पे प्लेस करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करे. दे आर रेडी, दे आर पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. और ये हमेशा कोशिश की जाती है कि जो वर्कफोर्स है वो सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सके. Now the staffing is defined as a managerial function of filling and keeping filled the position in the organizational structure. The personnel appointed are a combination of permanent employees, daily workers, consultant, contract employees, etc. तो जितने लोग भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसमें कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ डेली वर्कर्स होते हैं. सो दिस स्टाफिंग कंसिस्ट नॉट ओनली द परमानेंट एम्प्लॉयज़, सम casual workers also, some contract persons also. So staffing includes identifying the requirement of workforce and its planning, recruitment and selection of appropriate personnel for new job or for position which may arise as a result of existing employee leaving the organization. ठीक है, तो इसमें जो है वर्कफोर्स के लिए प्लान की जाती है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, वो कहाँ से आएंगे, उन्हें कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, और जो जॉब्स पोजीशन
या तो हमारे पास नई जॉब्स हैं, नई जॉब्स हमने क्रिएट की है, नए जॉब ऑर्गेनाइज ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या जो पिछले एम्प्लॉयज़ थे जो पहले से काम कर रहे थे वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गए हैं, तो उन जगहों को फिलअप करने के लिए हम कहाँ से कैसे पर्सनल्स को लाएंगे। प्लानिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ वर्कफोर्स, और जब हम पर्सन्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या क्या उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। डिसाइडिंग ऑन कंपनसेशन, प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर द वर्कफोर्स, और इसी स्टाफिंग प्रोसेस में जो है हम उनका कंपनसेशन, कितना सैलरी दिया जाएगा, कैसे उसे प्रमोट किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा, और उसके परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे उसको चेक किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम स्टाफिंग में इंक्लूड करते हैं और इन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। वाई दिस इज़ very important. Staffing fills the position in the organizational structure by finding right people for the right job. जैसा हमने अभी definition में पढ़ा, in this process we are going to search the best candidate for the right job. It is a human resource which helps business to achieve greater height. Therefore, having right kind of workforce is the most fundamental and crucial function of मैनेजमेंट। और इस स्टाफिंग फंक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक मैनेजमेंट के सामने क्वेश्चन होता है कि कैसे हम एक अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करें जो कि बिज़नेस को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अर्लियर स्टाफिंग मींट अपॉइंटिंग पर्सनल टू गेट जॉब डन, बट टुडे ड्यू टू रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टाफिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन हैज़ गेन ग्रेटर सिग्निफिकेंस। पहले क्या था कि जो है हम लोगों को काम पे लगा देते थे, वो अपना काम कर देते थे, वहीं तक सीमित है। लेकिन अभी क्या है, ग्लोबलाइज वर्क है, डायनेमिक इन्वायरमेंट है, तो इस रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट में हमें एक इफ़ेक्टिव स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, एक जो है ग्रुप ऑफ स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ती है। The continuous advancement in technology, changing human behavior, and increase in size of business require staffing to appoint per people who not only have specialized knowledge but also the right attitude, aptitude, commitment, and sense of loyalty for the organization. अब क्या है, स्टाफिंग में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो रहा है, तब यहाँ पर ऐसे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है जो कि सिर्फ उसके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही ना हो, उसका एटीट्यूड कैसा है, किसी चीज़ को सीखने की उसकी लगन कैसी है, दैट इज़ एप्टीट्यूड कैसा है, कमिटमेंट उसके कैसे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स, द स्टाफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स के बेस पर अपने कंपटीटर से आगे जाती है। मान लीजिए अगर दो बिजनेस यूनिट्स हैं, दोनों के पास सेम फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, लेकिन तब भी एक बिजनेस यूनिट दूसरे से काफ़ी आगे निकल जाती है। दिस इज़ ड्यू टू देयर ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि उसके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छे हैं, इसलिए एक बिजनेस दूसरे को compete कर जाता है। और दैट्स वाई these are the very important assets for the business organization. Now we go through the importance of staffing. The first one is identifies competent personnel. So with the help of staffing function we have to identify the competent person जो compete कर सके, जिसमें काफ़ी योग्यताएं हों। Staffing identifies the requirement of workforce to fill in the position in the organizational structure and select right people for the right job is ensure that people with adequate competence are employed. तो इस स्टाफिंग के द्वारा जो है हम ऐसे वर्कफोर्स को, ऐसे पीपल्स को जो है हम सेलेक्ट करते हैं जो कि सही जॉब के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो वी सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, और उसके पास वो योग्यताएं, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो उस जॉब को सूट करती हो। फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट्स विच आर शॉर्ट ऑफ टीचर्स एंड वर्क टूवर्ड्स फाइंडिंग द एडिक्वेट
टीचर। अब मान लीजिए आपके स्कूल में ही कोई डिपार्टमेंट खाली है, टीचर की शॉर्टेज है, नाउ द प्रिंसिपल सर्च फॉर ए एडुकेट टीचर। Improved performance by deploying right people on the right job help business enterprise to use physical resource in the most optimum manner, leading to higher productivity, better efficiency and improved performance। अब मान लीजिए आप एक सही पर्सन को, एक स्पेशलाइज, एक टैलेंट, एक जो है जिसमें एप्टीट्यूड अच्छा है, ऐसे पर्सन को अगर आप सही जॉब पर अपॉइंट करते हैं तो उससे बिजनेस के जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो उसे अच्छे तरीके से यूज़ करेगा और बिज़नेस को एक नई ऊंचाइयों तक, प्रोडक्टिविटी को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, टू गेट बेस्ट रिजल्ट, टीचर विथ प्रोफेंसी इन BST आर द राइट पीपल टू बी अपॉइंट इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट टू टीच BST, बिजनेस स्टडी। यानी कि मान लीजिए अगर जैसे जो है बेस्ट रिजल्ट चाहिए बिजनेस स्टडीज़ के लिए, चाहे अकाउंटेंसी के लिए, चाहे फिजिकल एजुकेशन, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो ये ज़रूरी है कि जिस टीचर के पास वो नॉलेज है, जो टीचर उसके बारे में उसको एक्सपीरियंस है, ऐसे टीचर को ही वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि जो है वो बच्चों को सही जानकारी दे सके और एक बेस्ट रिजल्ट लाने में मदद कर सके। कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, proper training and employees development programs update managers with the changes in business environment, and with the help of this staffing function the business organization provide time to time the training to their employees so they will update their knowledge। इससे उनकी नॉलेज अपडेट होती रहे, क्या क्या बिजनेस में चेंजेज हो रहे हो वो जान पाएँ। द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर इंश्योर द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटर। और इस तरीके से जब प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, टाइम टू टाइम उनके नॉलेज को अपडेट किया जाएगा, तो बिज़नेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी और ये अश्योर किया जा सकेगा कि हमारा बिज़नेस कंटिन्यूस रन करता रहेगा। Whenever there is change in a syllabus or marking of papers, CBSE board holds workshop for teachers so that they are aware of the changes and able to incorporate the same in their teaching plan। अब जिस तरीके से एग्जांपल है कि जो टीचर्स हैं, जब भी कोई सिलेबस में चेंजेज होता है, मार्किंग में चेंज होता है, तो CBSE के द्वारा वर्कशॉप की जाती हैं, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि टीचर्स को जो चेंजेस हैं उनसे अवेयर कराया जा सके, उन्हें जानकारी दी जा सके, सो दे विल make the necessary changes in their teaching plan। Next one is optimum utilization of human resource। अब जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसे कैसे अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। स्टाफिंग आइडेंटिफाइज द वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट एंड प्लान अपॉइंटमेंट ऑफ पीपल अकॉर्डिंगली। दिस इंश्योर दैट there are adequate personnel available to avoid underutilization or disruption of work due to understaffing। अब स्टाफिंग प्रोसेस जो है मदद करता है कि जहाँ पर जितने लोगों की ज़रूरत है वहाँ उतने लोगों को अपॉइंट किया जाए। ये इंश्योर करता है कि कहीं हम अंडर यूटिलाइजेशन में तो नहीं, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ह्यूमन रिसोर्स उसका हम कम उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है जहाँ पे काम ज़्यादा है और कम लोगों को काम पे लगाया गया है, वहाँ अंडर स्टाफिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके स्टाफिंग जो है रिक्वायर्ड पर्सन्स को अपॉइंट करता है ताकि ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एडुकेट नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच डिपार्टमेंट इंश्योर दैट ईच क्लास हैज़ एन असाइंड टीचर। और इसीलिए हर स्कूल में ये अश्योर किया जाता है कि हर क्लास के लिए हर डिपार्टमेंट में टीचर हो ताकि हर क्लास जो है प्रॉपर रन करे, हर क्लास के लिए प्रॉपर क्लास टीचर हो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ठीक है, तो प्रॉपर जॉब पोजीशंस के लिए कितने नंबर ऑफ़ पर्सन्स चाहिए ताकि वहाँ पर किसी तरह की शॉर्टेज ना हो, ये देखना स्टाफिंग का काम है और स्टाफिंग के द्वारा इसे पूरा किया जाता है। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड बिल्ड मोरल। अब स्टाफिंग का एक और काम भी है जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करता है उनके अपने एफर्ट्स को लगाने के लिए। स्टाफिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ through internal promotion, appreciate and rewards the contribution through continuous appraisal. This keep the workforce satisfied and a high moral. So from time to time different types of incentives are provide to the workers। अगर किसी पर जो है टारगेट किसी पर्सन ने अचीव किया है अच्छा विद इन
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो उसे रिवार्ड दिया जाएगा। एम्प्लॉयज़ के बीच में जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, तो उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा, रिवार्ड्स प्रोवाइड किए, ताकि उसका जो मोटिवेशन लेवल है, जो वर्किंग लेवल है वो बढ़ता रहे, उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाए। For example, at the end of academic year, schools may plan appraisal for each teacher to give Teacher of the Year award. This brings satisfaction for the teacher who work hard and also motivate other to work hard. इसलिए स्कूल में भी आपने देखा होगा बहुत जगह पर टीचर्स को मोटिवेट किया जाता है। अगर कोई टीचर जो है किसी तरह के वर्क को एकम्प्लिश करता है तो उसे बुलाया जाता है, उसे लोगों के सामने सम्मानित किया जाता है। इससे उस जो टीचर है उसकी वर्किंग एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, और जो दूसरे टीचर्स हैं दे आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर। यू मे आल्सो ऑब्जर्व दैट योर स्कूल प्रिंसिपल वाज अ टीचर वंस, सी और ही वाज प्रमोटेड टू दिस पोजीशन एज एन अप्रिसिएशन ऑफ हार्ड वर्क। और जैसे आज हमारे प्रिंसिपल हैं वो भी कभी टीचर थे, लेकिन अपने हार्ड वर्क के कारण आज वो है इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन on staffing, you must have realized that human resources are the principal assets of an organization। और इस डिस्कशन से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। For the success and growth of an organization, it is must that position in the organization structure are filled at the right time with the right number and the right kind of people। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम सही समय पर सही पर्सन को अपॉइंट करें सही जॉब पर। इनकम्पिटेंट पीपल विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स। और जो इनकम्पिटेंट पीपल हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, जिनके पास योग्यता नहीं है, अगर हम ऐसे लोगों को समय पर काम पे लगाते हैं तो इससे हमारे वेस्टेज का रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज होगा, समय नुकसान होगा, एनर्जी और एफर्ट्स भी गंवाएंगे। Therefore, to use resources optimally, achieve maximum productivity and produce good quality product, it must that people with appropriate knowledge and experience are appointed. Employees should be trained to adopt the change in business environment. To keep the job filled, there should be proper compensation and incentive for achieving टारगेट। इसलिए यहाँ ज़रूरी है कि जो एक्सपीरियंस है, जो जिसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, उसी पर्सन को जॉब असाइन किया जाए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी नॉलेज को अपडेट किया जा सके, समय समय पर उन्हें कंपनसेशन और इंसेंटिव रिवार्ड्स दिए जाए ताकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके और उनके मोरल को हाई रखा जा सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिकॉज हमने जैसे अभी जस्ट वी हैव लर्न दिस how these human resource are very important asset for a business organization. So staffing as a part of human resource management. Human resource, the people working in the organization, is the most important asset for an organization. It is the competence and performance of human resource which help an organization to achieve its goal। और बिना इन रिसोर्स के, ह्यूमन रिसोर्स के किसी भी टारगेट को अचीव कर पाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। टू इंश्योर दैट द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिमेन फिल्ड विथ क्वालिफाइड पीपल, स्टाफिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिक्रूट, सेलेक्ट, ट्रेन एंड मोटिवेट पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमेशा ज़रूरी है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंट जॉब पोजीशन ना हो, कोई भी जगह खाली ना हो, और अगर है तो उसे एक कॉम्पिटेंट पर्सन्स के थ्रू फिलअप किया जाना चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशन विथ स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इट इज़ पॉसिबल फॉर ए मैनेजर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू स्टाफिंग सिंगल हैंडेड। अगर कोई स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर उस मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो हर अपने जो स्टाफिंग, जो अपने मेंबर्स हैं या जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है, खाली जगह है, उसको वो हैंडल करे, उसे फिलअप करे। However, with the increase in scale of operation, number of employees increasing, making it difficult for a manager to manage all the aspects of human relation। मान लीजिए अगर छोटा बिजनेस है, 4-5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैनेज कर पाना एक पर्सन के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जहाँ पर बड़ी बिजनेस यूनिट है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, दैट सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल मैनेज टू मैनेज each and every human resource. Therefore, to manage people effectively, organization with large number of employees create a separate department called human resource department. इसीलिए अगर बड़ी organization है, there are thousand many employees are working in that particular organization, so there is a need of a separate department. इसलिए वहाँ पर एक अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो इनकी देख रेख करे, कैसे हम एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम उन्हें रिक्रूट करेंगे, कैसे कंपनसेशन देंगे, तो इससे रिलेटेड जो काम है उसके लिए एक अलग से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है. दिस डिपार्टमेंट लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ मैनेज बाय पीपल विथ एक्सपर्टाइज इन ईच फंक्शन ऑफ स्टाफिंग. और जो लोग जो है इस तरह के डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो एक्सपर्ट पीपल्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को ईजी अच्छे तरीके से हमें मैनेज करना है. जैसे आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, वो पर्सनल डिपार्टमेंट एचआरएम का ही काम करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है. द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इवॉल्व एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द बिजनेस environment. Industrial revolution and introduction of factory system led to employment of thousands of people under one roof. और जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज होता गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती गई, फैक्ट्री सिस्टम चेंज होता गया, तो उसके हज़ारों लोग काम पे लगाए गए जो एक फैक्ट्री के अंदर. It required management to assign the responsibility of hiring people, which include recruitment, selection, placement of personnel. और इतने लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स को कैसे हम हैंडल करेंगे, ये कैसे लोगों को हम काम पर लगाएंगे, कैसे उनका रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, प्लेस करेंगे उनको पर्टिकुलर जॉब पर, ये एक काफ़ी बड़ी समस्या थी. द रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फर्दर नेसेसिटेट द नीड टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ सो दैट दे एक्वायर रिलेवेंट स्किल. और जैसे जैसे डायनेमिक इन्वायरमेंट होता गया, नई नई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तब यहाँ पर ज़रूरत पड़ी कि कैसे लोगों को ट्रेन किया जाए, हाउ टू वी अपडेट देयर नॉलेज. द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. और इसलिए यहाँ ज़रूरत पड़ी कि जो है हम एक ऐसे डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करें जो कि इस तरह के जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको ध्यान दे, उनको मैनेज करे. सो इट्स ह्यूमन रिसोर्स. द इंक्रीज इन स्कोप ऑफ वर्क चेंज द रोल ऑफ पर्सनल ऑफिसर. द पर्सनल ऑफिसर बिकम पर्सनल मैनेजर एंड वॉज फाइनली रिप्लेस विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. और जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई, कैसे हज़ारों लोग काम पे लगे, तो उन्हें मैनेज करने के लिए एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी, अलग अलग पर्सनल ऑफिसर अपॉइंट किए गए, और वही लोग धीरे धीरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रूप उन्होंने लिया. यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्रिएट किए गए, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस ह्यूमन रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना. सो यू सी इन दिस पिक्चर हाउ the human resource are involved in different types of activities: potential employees, skill to develop, research the exact person for the right job, provide the training, recruitment, check the performance of the employees, and provide a leadership guidance to the employees in a right direction. Now we are going to learn the different functions performed by the human resource management. The different functions performed by the HRM are planning, staffing, developing, motivating the employees, managing changes, aware about the changes in the business environment, maintaining a cordial relationship between the workers and the superior subordinate, evaluating their performance, appraising their performance, and on the basis of their are providing the promotion also. So the personnel working in the human resource department perform specialized activities and duty which may include recruitment of qualified people, preparing job description, developing compensation and incentive plans,
जॉब डिस्क्रिप्शन हमने पहले भी पढ़ा है, जो ये स्पेसिफाई करता है कि किस पर्सन को क्या काम करना है, कैसे कंपनसेशन दिया जाएगा, कौन कौन से इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उनको और उनके मोरल को हाई किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, जो एक्सीडेंट्स हैं उनको कम किया जा सके, उन्हें करियर ग्रोथ, हायर जॉब पोजीशन के लिए मौका मिले। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, हैंडलिंग ग्रीवेंसेज एंड कंप्लेंट्स, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सुना जाए, उनके लिए क्या जो है डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट किए जाएँ, उनको सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, कैसे फ्यूचर, उनके फ्यूचर को कैसे सेव किया जाए, कौन कौन से इंश्योरेंस प्लान उनको दिए जाएँ। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन, कैसे अगर कोई केस होता है तो हम उसे, अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में केस करता है तो उससे कैसे बचा जाएगा। इस तरह के सारे जो डिसीजंस हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में लिए जाते हैं। You will agree that today staffing is an inherent part of human resource management, as it is the practice of finding, evaluating, and establish a working relation with people for a purpose. Thus, human resource management is much broader concept and include a wider gamut of activities. तो आपने देखा कि कैसे जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है किस तरीके से राइट पर्सन को सेलेक्ट करता है, किस तरह से वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करने में मदद करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और इट इंक्लूड अ वेरी वाइड activities. They are performing a different types of activities and helps in achieving the organizational goal. So this is about human resource management.